हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नजीब आलम, क्या हाल है? क्या हाल है सर? अल्लाह का करम है सर। अच्छा, अभी आपने एक नहीं ज्वाइन किया है, बाकी आ जाते हैं ना। हम शुरू करते हैं बाकी। अच्छा, आप मैसेज ज्वाइन कर कर दो। लेंगे सर। हाँ, मैसेज कर दो ग्रुप में ज्वाइन क्लास करके ना। देखो सर, हमारा मिड का पेपर सर। तो आप क्वार्ट 1 में और 2 में? क्यों नहीं सर? नहीं यार, क्वार्ट 2 के तो पेपर इधर होंगे मिड के। नहीं नहीं, किसने कहा है? सिखाऊं सर आपको व्हाट्सएप पे? दूसरा पेपर भी है सर, 2 पेपर भी है सर हमें। 12 होंगे। ये छुट्टियों के बाद आप लोगों का मिड इधर होगा ना। तो अभी तो मिड की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग मिड पहले कैसे हो गया? मैं क्या एडवांस नहीं हो गया सर हमारा। शायद 2 क्लासेस थी सर इसकी और सब्जेक्ट। अभी
Hello, assalamu alaikum students. Let's start. Today we have a lecture on pricing approaches. Okay, we have already studying prices. How can we do the pricing? We have studied different factors. Two group of factors we studied. One is internal factor, other one external factor. So we finished yesterday the external factor also. So next are the pricing approaches or pricing methods. How we can make the or define the or finalize the prices of any product. Okay. So what approaches we should adopt to price something. So pricing methods या pricing approaches जो है ये हमारा आज का टॉपिक है. Okay. So we have three bases based on we price a product. Okay. So three basic methods to price your product. Okay. So one is the cost based pricing. The second one is competition based pricing. And then we have the customer based pricing. Okay. So you must be clear about these three things, starting with C: cost, competition, customer. Okay. These three C's define the pricing. Then under each approach, under each method, we have certain sub methods, sub techniques we use in order to define the pricing. Here cost means the cost of the product, means expenditure that have happened or incurred in order to produce something. That is the cost. We also call it a cost of production. Okay. So cost of production based pricing, that is called the cost based pricing. Okay. Then we have the competition based pricing. Competition based, that depends on the market forces. What is the environment in the market? Okay. What kind of competition over there? Who are the competitors with your product? What are the substitutes over there? Okay. How many sellers over there? How many buyers over there? This define your pricing, and you are bound to accept this competition, and according to that you decide the pricing of the product. Okay. Then third one is the customer preference based, customer based pricing, in which we see towards the customer, what customer think about the product, how customer is satisfied about the product. Okay. So based on that we define the price. So I have told you the summary of today's lecture. Okay. So we will discuss these three pricing approaches onward. Okay, one by one. This is the last lecture of your mid portion. Thereafter we will start the final one, and if there will be no vacations, winter vacation, we will continue online. Otherwise we will stop for winter vacation, and after winter vacation your physical classes will start at the university. Okay, face-to-face classes will start.
after winter vacations in February. Okay, maybe 10 February, maybe 1st February, I don't know. So final portion you will study in the university. Okay, if something unexpected not happen. Okay, so we will finish the mid portion today. Okay, that is related with the pricing approaches. Najib Alam, you have any question? सर जो इम्तहान जो एग्जाम्स होंगे सर वो यूनिवर्सिटी में होंगे आज जो हम मिड कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे ना सर इसके बाद एग्जाम जो है आपके मिड के एग्जाम वो जो क्वार्ट 2 है उसका हम डिपार्टमेंट लेवल पे ये डिसीजन ले रहे हैं कि उनका मिड हम इधर यूनिवर्सिटी में ही लें। विंटर वेकेशन के बाद आप जब आए यहाँ पे तो पहले मिड दें फिर आपका फाइनल हमें मेरी क्लास चल बाद में आना 12:30 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अच्छा हाँ मैं क्या कह रहा था कि विंटर वेकेशंस के बाद आप पहले मिड आके देंगे, विंटर में आप तैयारी करेंगे, फिर आप मिड आके पहले मिड में अपेयर होंगे, उसके बाद आपकी फाइनल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये क्वार्ट 2 के लिए ये प्लान है। क्वार्ट 1 का भी हम सेम इसी तरह सोच रहे हैं, लेकिन मे भी उनका ओपन बुक मिड हो जाएगा, फ्रॉम होम असाइनमेंट टाइप का उनका मिड उनको दिया जाएगा। ठीक हो गया? इज इट क्लियर नजीब आलम? सर ओके सर। ओके, सो कास्ट बेस्ड प्राइसिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ईच ऑफ द 3 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स बिगिंस विद द प्रोडक्ट कॉस्ट सब टोटल। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी जो है उसमें भी फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द cost, to calculate the cost. Okay, so to calculate the product cost you need to include the cost of operating the business. So it is not only the cost of the material used to produce something, but it is the total cost, operating cost of the business also, and in this necessarily includes cost of the raw material used, cost of the transportation, the cost of advertising, cost of wages, cost of rent, and other cost incurred in producing the product. Other cost में different products की different activities होती हैं जो कि उसके लिए करना होती हैं, जैसे कि आपने पैकेजिंग भी करनी है, स्टोरेज भी करनी है, उसके ऊपर भी कास्ट है। तो वंस यू हैव बेस कॉस्ट देन एट द प्रॉफिट लेवल यू वांट फॉर द बिजनेस टू प्रोडक्ट कॉस्ट सब टोटल टू डिटरमिन योर प्रोडक्ट प्राइस। तो जब आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें एक रीजनेबल प्राइस उसमें आप ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, तो उससे आपकी उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्राइसिंग जो प्रोडक्ट की है वो फाइनलाइज हो जाती है। देन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट यू ऐड टू द प्रोडक्ट कॉस्ट सब टोटल कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स आप यूज करते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट किस हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है, इसमें एक है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग उसमें आप
उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन कास्ट है उस प्रोडक्ट की, उसकी कोई परसेंटेज आप उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की है, तो 100 रुपए उस पे खर्चा हुआ है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 100 रुपए है। तो अब उसमें आप 5% ऐड कर देते हो प्रॉफिट के तौर पे, तो उसके पैसे बन जाते हैं 105 रुपए। वो आप 105 रुपए की बेचेंगे, तो ये एक मार्कअप प्राइस है। देन ऐड ए परसेंटेज टू एन अननोन प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो इसमें आप ये नहीं सोचते कि उसमें उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, आप जस्ट उसमें प्राइस ऐड कर देते हैं अपने प्रॉफिट के तौर पे, तो वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। ठीक है, देन प्राइसिस इज ए ब्लेंड ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, टोटल आप एक ब्लेंड बना लेते हैं, उसमें आप प्लान कर लेते हैं कि मेरी कास्ट इतनी होगी तो मेरा प्रॉफिट उसमें इतना जो है मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपकी प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग है। इसमें आपके पास आपको पता होता है कि आपकी कास्ट कितनी है, लेकिन आप उसमें इंटेंशनली अपनी तरफ से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए उसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें आप कोई परसेंटेज नहीं करते। ठीक है, तो ये एक ये अप्रोच है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की। तो all these types of cost based pricing will be more accurate if you use a complete product cost subtotal। तो अगर आप ज्यादा इसमें authenticity चाहते हैं, वैलिडिटी चाहते हैं, तो you have to first calculate the cost of production and then you decide about the profit over it। The key to accuracy is to ensure all cash and non-cash costs, raw material, labor, overhead, operating cost are included in the product cost subtotal। तो इसमें कैश और नॉन कैश कॉस्ट जो है वो सारी आ जानी चाहिए इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैश एंड नॉन कैश, बहुत सारी चीजें जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें तो कैश की बेस पे हमें पता चलता है कि हाँ ये खर्चा हुआ है, लेकिन कुछ चीजों का हमें कैश की सूरत में पता नहीं चलता, लेकिन वो एक तरह से कॉस्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कैपिटल जो रिसोर्सेज है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो इस्तेमाल हो रही है उसका आपको, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो आपको उसका वो इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग और उसकी वियर एंड टियर हो रही है, ग्रेजुअली उसकी जो है बिल्डिंग जो है वो यूज हो रही है और उसके मतलब इस्तेमाल हो रही है, उसका पेंट खराब हो रहा है, उसकी दीवारें खराब हो रही हैं, तो अपेरेंटली वो आपको कैश की सूरत में कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन उसकी कास्ट को भी आपने उसमें इन्वॉल्व करना है। जो रिपेयर की कास्ट, you need to set a value for your management expertise and labor। तो आप अच्छा फिर उसमें जो खुद बंदा है, जो खुद मैनेजर है, उसकी एक्सपर्टीज भी यूज हो रही है। ठीक है, उसकी कास्ट कहाँ गई, वो खुद भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसकी कास्ट, उसकी मेहनत, उसकी लेबर, उसका नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कास्ट भी होती है। And use of your land or capital equipment also must be valued along with the depreciation on your machinery and building। तो depreciation की कास्ट को भी आपने कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएशन का मतलब है कि कोई चीज इस्तेमाल हो रही है
उस बिजनेस में, तो ऐसा ऐसा उसकी वियर एंड टीयर हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू। तो उसको हम अगर दोबारा उसी हालत में, पहले जैसी हालत में लेके अगर हम आना चाहते हैं, तो उसको उसकी रिपेयरिंग करवाना होगी, और उस रिपेयरिंग पे जो खर्चा आएगा वो आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। यानी कि मशीनरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो मशीनरी साथ खराब भी तो हो रही है। हाँ, ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। अगर शुरू में वो मशीनरी 15 लाख की थी, तो 5 साल के बाद उसको इस्तेमाल होने की वजह से वो 10 लाख की रह गई, ठीक है, या 5-7 लाख की रह गई, तो वो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ठीक है। तो उस कास्ट को भी हमने इसमें इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड ए प्रॉफिट परसेंटेज विद प्रोडक्ट कास्ट, ये अब हम सब टाइप्स जो कास्ट बेस्ड प्राइसिंग है उसकी सब टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है मार्कअप प्राइसिंग। जैसे कि मैंने कहा कि एक आप प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हो, और उसकी कोई परसेंटेज निकाल लेते हो कि मैं 2% जो है प्रॉफिट लूंगा, मैं 5% प्रॉफिट लूंगा। तो मार्कअप प्राइसिंग इज फेवर्ड बाय businesses with many products because it is simple to calculate। तो ये सिंपल होती है और इसमें नुकसान के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और ये रीजनेबल अगर परसेंटेज ऐड की जाए तो वो बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है। प्रॉफिट लेवल यू वांट फॉर द बिजनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए परसेंटेज, ठीक है। तो ये परसेंटेज की सूरत में होगी। परसेंटेज इज एडेड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट टू सेट द प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। तो ये ऐड कर किए जाते हैं उसमें। देन परसेंटेज इज एडेड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट टू सेट प्रोडक्ट प्राइस। देन मार्कअप प्राइसिंग इज कॉमन इन रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में ये कॉमन है, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े, और वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, बिकॉज ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड परचेजेस फ्रॉम मेनी वेंडर्स। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसको रिटेल बिजनेस कहेंगे। और उसमें ये जो मार्कअप प्राइसिंग है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि कंपनी मेक्स 15 डिफरेंट जैम्स एंड जेलीज। They set up a small shop in a local mall to sell their products alongside other prepared foods. तो a jar cost ₹1.5 to produce, यानी कि ये उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो मार्कअप प्राइसिंग परसेंटेज दैट कंपनी प्लान्स टू यूज इज 40%। तो 40% वो कह रहे हैं कि ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। द जार ऑफ द जैम विल कॉस्ट $2.1 इन शॉप। तो $1.5 से कितना हो गया, $2.1 हो गया है, जब उसमें उन्होंने मार्कअप किया प्रॉफिट के साथ, उसमें 40% उन्होंने एड अप किया, ठीक है। तो वो अब उसके प्राइस हो गए हैं $2.1, जो कि वो मार्केट में आप बिकने के लिए रेडी है, ठीक है, इस $2.1 प्राइस पे, ठीक है। तो ये मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरी जो सब टाइप्स है प्राइसिंग की, सर ये इसमें ये देखें सर, ये 4th पॉइंट, ये मार्कअप प्राइस इज कॉमन इन रिटेल बिजनेस बिकॉज ऑफ सो मेनी टाइप। ये वाला आप ये समझ नहीं आए सर, ये वाली लाइन समझ। हाँ, ये मैं बता रहा था कि जब किसी कोई कंपनी है तो उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब वो इस झंझट में नहीं पड़ेगी कि एक एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करे और उस पे वो कोई प्रॉफिट सेट करे।
यानी कि एक ही कंपनी जो है वो जैम भी बना रही है, जेलीज बना रही है, बिस्किट बना रही है, ठीक है, तो वो उसमें एक एक प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने में नहीं लग जाएगी, जो जो उसका मालिक होगा, ठीक है, उसके मालिक ने डिसाइड करना है ना कि उसके प्रॉफिट कितने हैं, तो वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है। कैसे चेंज होती है कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको बनाने में, उसके तब चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर आलू इस्तेमाल हो रहे हैं चिप्स बनाने में, वो बनाने में, लेज बनाने में, हाँ, तो आलू के पैसे पोटैटो के मार्केट में चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से फिर उसके प्राइस भी तो चेंज होने चाहिए ना। जो लेज का पैकेट मिलता है या चिप्स मिलते हैं, तो कंपनी का मालिक बार बार उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करे और फिर उसके ऊपर पैसे सेट करे। इस झंझट से बचने के लिए वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ अपने मैनेजर को ये ऑर्डर करेगा कि मेरा प्रॉफिट जो है, मेरी हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट जो है वो 5% हो, बस। ये एक चीज उसने बता दी है और ये चीज कई सालों तक चलेगी, ठीक है। अब उसको एक एक प्रोडक्ट के बार बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके फिर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करना पड़ेगा। उसने बस एक दफा बता दिया है कि मेरा 5% इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये मार्क अप प्राइसिंग है, ठीक है। तो ये रिटेल बिजनेस वो होता है जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनियां सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती, कुछ कंपनियां मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फिर उनमें हर एक प्रोडक्ट के प्राइस कैलकुलेट करने होते हैं। तो उस झंझट से बचने के लिए फिर मार्कअप प्राइसिंग इज बेस्ट सोल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वर्क्स वेल इफ यू डोंट नो योर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट का पता नहीं है तो उसमें आप फिर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू मार्कअप प्राइसिंग, तो ये मार्कअप प्राइसिंग से भी मिलता जुलता भी है। The big difference between markup pricing and cost plus pricing is that both buyer and seller settle on the profit figure and percentage, accepting that the cost of production is unknown. तो इसमें एक तरह से बायर और सेलर के दरमियान एक बार्गेनिंग भी है, ठीक है, एक नेगोशिएशन है, बार्गेनिंग है, एक वो क्या उसको कहते हैं, बोली वाला सिस्टम एक है, इसमें बार्गेनिंग है, और जिस पे वो आ जाए वही प्रॉफिट, वही उस चीज के प्राइस है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो है किसी चीज के प्राइस के हवाले से हम उससे नेगोशिएशन करते हैं, प्राइस उसके कम करवाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें बेचने वाले का नुकसान भी नहीं होता और खरीदने वाला भी उसमें नेगोशिएशन करके, बातचीत करके, ठीक है, वो उसके प्राइस जो है वो मुनासिब करवा लेता है, ठीक है। तो इसमें दोनों का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, और जो बायर है वो हाई ज्यादा प्रॉफिट जो है वो इसमें नहीं ले पाता। इसमें एक ये चीज है, और सॉरी बायर नहीं, सेलर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाता, और बायर का जो है इसमें फिर नेगोशिएशन करते हुए उसका उसका नुकसान नहीं होता। तो इफ यू प्रोड्यूस custom order products for other firms or individuals, a cost plus pricing method could reduce your risk, ठीक है। तो अगर तो आपने
एक बड़ा ऑर्डर या एक रिटेल या उसको आप कहते हैं थोक की मार्केट जो है वो चलानी है उस हवाले से, तो आपको कम प्राइसेस पे भी कंपनी से चीजें मिल जाएंगी, वो आपको कम प्राइस पे भी सेल कर देंगे। रेदर देन टेक रिस्क ऑन इनपुट कॉस्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट यू कुड यूज ए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो इसमें एक एमओयू साइन हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बायर एंड सेलर, कि मैं इतने का आपसे लेता रहूंगा, ठीक है, सालों साल आपसे इतने का मैं खरीदता रहूंगा। तो वो जो सेलर है वो भी एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप अगर इतने साल मुझसे ये चीज खरीदते रहेंगे तो मैं आपको इतने प्राइस पे ये चीज दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक सेटलमेंट है बिटवीन सेलर एंड बायर। तो इसमें इसमें वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिस्कशन उनकी नहीं होती, ठीक है। वो उसमें बायर कहता है कि मुझे नहीं पता आपकी कितनी कास्ट है, जो कुछ भी है, और उसमें ना ही सेलर जो है वो इसमें पता है। तो वो कहता, सेलर कहता है कि मैं आप इतने की ले, बायर कहता है कि नहीं इतने की नहीं, आप इतने कम करो इसमें, ठीक है। वो कहता है चलो ठीक है, ना आपकी बात ना मेरी बात, ये दरमियाने प्राइस है, आप इससे ये इस पे आप ले जाए, ठीक है। तो इस पे वो एग्रीमेंट उनका हो जाता है, और वो चीज जो है, तो वो जो डिसाइड होता है वो उस चीज के प्राइस हो जाते हैं, ठीक है। उस चीज के वो प्राइस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इस चीज के प्राइस है, ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की। उस वो जो प्राइस डिसाइड हो जाते हैं उसी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाती है, उसी में प्रॉफिट भी आ जाता है जी। सर एक बात ये है ना सर, वो जो सेलर जो है सर, वो जब प्रोडक्ट लाता है, जब वो आगे सेल करने के लिए किसी बायर के पास जाता है, तो वो जो प्रोडक्ट की कीमत उससे ज्यादा बताएगा ना सर, जैसे वो फिक्स कीमत है उससे कम करके वो दे नहीं सकेगा ना सर आगे बायर को। हाँ, उसमें जो जितने की उसने खरीदी हुई है डेफिनेटली उससे लो पे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर उस पे लो पे उसको जाना पड़ा तो उससे पहले वो कस्टमर को दुकान से ही निकाल देगा, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसने बस अपना प्रॉफिट उसको कम करना पड़ेगा इस नेगोशिएशन में, ठीक है। तो प्रॉफिट को कम करते हुए वो प्रोडक्ट को बेच देगा, सही है। अब आप देखते हैं कि हम दुकानों से चीजें लेते हैं और उसके ऊपर प्राइस लिखे होते हैं, ठीक है, और हम वही प्राइस उनको पे करते हैं जो ऊपर लिखे होते हैं। कुछ चीजों पे तो लिखे हैं ना प्राइस, बल्कि ज्यादातर चीजों के प्राइस लिखे होते हैं। हम दूध का डब्बा लें तो उसके ऊपर भी प्राइस लिखे हैं, तो या बिस्किट लें उसके ऊपर भी प्राइस लिखे हैं, तो हम वो प्राइस दुकानदार को पे करते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो प्राइस ऊपर लिखे हैं ये तो कंपनी वालों ने लिखे हैं ना, दुकानदार जनरल स्टोर वाले ने तो नहीं लिखे ना। तो वो तो वो आप क्या समझते हैं कि उसको भी ये चीज इतने की मिली है, तो फिर उस दुकानदार को बेचने का फायदा क्या है उसका? फिर उसका प्रॉफिट उसमें फिर कहाँ गया? तो इट मीन्स के जी जी हाँ सर वो आगे जो फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर करेगी सर, बनाएगी, वो तो वहां से ही सेल वगैरह पे करके जो बराबर करके उसमें, यानी फॉर एग्जांपल अब एक पे का जो डब्बा में ₹2 या ₹5 उससे उस प्रॉफिट दे के फिर बेचता है ना सर। हाँ, तो उसमें वो सारा इंक्लूड करके उसमें वो दुकानदार को, इट मीन्स के अगर दुकानदार हमें ₹120 का दे रहा है तो उसको ₹100 का उधर से मिला होगा या ₹110 का उसको मिला होगा, और लेकिन प्राइस उसने ऊपर 120 कंपनी से ही लिखवा लिए है, ठीक है। तो इस तरह से वो वहां से प्राइस
तो ये एक उस दुकानदार की कंपनी के साथ क्या है, एक नेगोशिएशन है कि कितना वो डिफरेंस जो है वो डालता है उसमें और उसके प्रॉफिट के लिए। सही है, तो ये चीज है। तो इसमें यू एग्जाम्पल यहाँ पे, यू हैव एग्रीड टू एक्ट एज ए को पैकर फॉर ए स्टार्टअप स्नैक फूड बिजनेस। ठीक है, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लो फैट एनर्जी बार्स। ठीक, तो एज ए को पैकर यू विल परचेज इंग्रेडिएंट्स थ्रू योर सप्लायर्स बट यू आर unsure of the input cost. The snack food business signs a contract with you to pay for material costs plus a processing cost of $25 per case. ठीक है, तो इसमें में एक पैकिंग वाले से एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो पैकिंग वाले जो है, पैकिंग वाला उसको नहीं पता कि वो जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, उसने जस्ट पैकिंग करनी है और उसने उसमें मटेरियल जो उस पैकिंग में डाल के तो उसने जो है उसको वापस दे देना है कि ये मैंने पैक कर दिया और अब इसके प्राइस जो है वो $25 है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि हाँ, एक सेलर और बायर्स के दरमियान में कि आप कितने प्राइस जो है इसके हमारे होने चाहिए। तो ये उनके दरमियान में एक क्या है, बातचीत है। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो इसमें कॉस्ट जो है उसको थोड़ा सा अननोन रखा जाता है और उसमें पता नहीं होता। तो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग। प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग है, दिस मेथड इंश्योर यू विल अर्न ए टोटल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ठीक है, इसमें ये भी श्योरिटी है कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। It differs from the first two types of the cost-based pricing as they focused on a per unit pricing. उसमें उनमें पर यूनिट प्राइसिंग पे फोकस था और इसमें जो है प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग है, कंबाइंस पर यूनिट कॉस्ट विद आउटपुट प्रोडक्शन टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें प्लान पहले से ही प्लान हो जाता है कि कितना प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। इसमें एक है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है टू कैलकुलेट द प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग। ओके, तो प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग इज वेल सुटेड टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। A manufacturer often has the ability to increase or lower the production depending upon the demand or the profit available. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज है, ये हम फाइनल पोर्शन में इसको डिटेल से और इसकी क्वेश्चन के साथ इसको हम पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इतना बता दूं कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने की बेचनी चाहिए जिसमें हमारा नुकसान नहीं है। ठीक है, कितने की हम बेचें तो हमारा इसमें ना प्रॉफिट है ना इसमें लॉस है, और कितने का हम बेचें तो इसमें हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके मुताबिक फिर कंपनी जो है ब्रेक इवन एनालिसिस करने के बाद उस प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो डिसाइड करती है। ठीक हो गया, अच्छा, यहाँ पे वही एग्जाम्पल उसको इन्होंने
क्या किया, मॉडिफाई किया मे बी। ए स्पेशल ऑर्डर केक बिजनेस कुड सेट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्डर दे रिसीव फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स। ठीक है, ए प्राइस ब्रेक इज गिवन टू कस्टमर्स हु ऑर्डर 10 और मोर स्नैक्स एट ए टाइम। ठीक है, इसमें पर यूनिट प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, इसमें एक बड़े ऑर्डर पे छूट है, जैसे कि बाई वन गेट वन फ्री, उस तरह के, या ऑर्डर बड़ा करेंगे तो प्राइस कम हो जाएंगे, ऑर्डर छोटा करेंगे तो प्राइस ज्यादा होंगे। जैसे कि बनाना जो बिक रहे होते हैं गिलगित में 150 के 2 दर्जन, और 1 दर्जन आपको मिलेगा कितने का, 80 रुपए का। ठीक है, हाँ, तो वन दर्जन आपको 80 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 दर्जन खरीदेंगे तो वो आपको मिलेंगे 150 के। तो इसी तरह अगर आप 5 दर्जन खरीदें तो वो प्राइस और भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग है कि आप बड़े ऑर्डर से खरीदते हैं या एक सेलर ज्यादा बेचता है तो वो प्राइस आपको कम भी करता है। ये एक आम प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग, कि इसमें उनको पता होता है कि अगर मेरी ये चीज ज्यादा बिक जाती है तो इसमें उसका उसका प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये चीज थोड़ी थोड़ी करके बिकती है तो इसमें उसका नुकसान है। क्योंकि अगर एक दिन वो चीज नहीं बिकी पूरे दिन में, अगर उसको वो चीज अगले दिन स्टोर करके अगले दिन लेके फिर मार्केट में उसको आना पड़ता है तो उसकी वो चीज स्पॉइल हो जाती है या खराब हो जाती है। तो इस तरह से वो एक ये टेक्निक जो है यूज करते हैं कि एक प्लान प्रॉफिट, लेकिन उसमें ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का जो साइज है उसके साथ उसके प्राइस जो है वो सेट करते हैं। ठीक हो गया? आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, यस सर। ये हमने अभी तक जो हमने पढ़ा वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पढ़ा। इसमें 3 सब टाइप्स हमने पढ़ी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में। एक तो मार्कअप प्राइसिंग था, दूसरा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, और फिर है प्लान्ड प्रॉफिट प्राइसिंग। ठीक हो गया? नेक्स्ट जो टाइप है प्राइसिंग की, दैट इज द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ओके, कंपटीशन बेस्ड, इसको हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट फोर्सेस होती हैं, वहां पे कंपटीशन की क्या सूरत हाल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है, या मोनोपोली है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर हमारे प्राइस जो हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो आप 1 मिनट देंगे, मैं थोड़ा सा काम।
Hello students, we are discussing this competition based pricing. Okay, तो कंपटीशन के हिसाब से मार्केट में जो कंपटीशन हो उसके हिसाब से अगर हम प्राइस किसी प्रोडक्ट के सेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, इसमें क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं। इसमें कंपनियां जो हैं कोशिश करती हैं कि कंपटीशन ही ना हो, ये दुआ करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन ही ना हो। सही है, तो उसमें वो कैसे ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं कि कंपटीशन ही ना हो। वो फिर इस तरह से कर सकती हैं कि अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करें। ठीक है, उसको यूनिक बनाएं, दूसरों से अलग बनाएं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करें। इस तरह की अप्रोचेस कर सकती हैं, या उसको ऐसे इलाके में जाके बेचें जहाँ पे कोई और हो ही ना। इस तरह से भी कंपटीशन कम हो सकता है। तो बिग एडवांटेज ऑफ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इज दैट यू आर focused on your industry and therefore your competition and you are competing। ठीक है, तो कंपटीशन की सूरत में कंपनीज को बड़ा कंसंट्रेट होके रहना पड़ता है, बड़ा अटेंटिव होके रहना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के हवाले से। वो उसको जस्ट ऐसे वांडरिंग कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। तो इंडस्ट्री फोकस associated with competition with pricing looks closely at the types of existing and emerging competition। कि इस वक्त ना सिर्फ वो कंपनियों को ये देखना होता है कि इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है, बल्कि उनको फ्यूचर के बारे में भी देखना होता है कि फ्यूचर में क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, एक कंपनी ठीक है करंटली वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही होगी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन फ्यूचर में अगर वो ज्यादा उसमें फोकस्ड नहीं है, ठीक है, तो फ्यूचर में वो नीचे भी जा सकती है सेल के हवाले से। तो वंस यू नो व्हाट योर कंपीटिटर्स आर डूइंग यू कैन बेटर डिसाइड हाउ यू विल मैनेज योर बिजनेस। तो ये फिर कंपनियां कोशिश करती हैं कि अपनी कंपीटिटर्स को, उनके प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह जाने कि उनकी क्या सूरत हाल है और फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, हमें भी वैसे करना होगा। ठीक है, तो यू आर एबल टू चार्ज ए हायर प्राइस इफ यू कैन शो हाउ द प्रोडक्ट हैज ए यूनिकनेस और इनोवेटिव क्वालिटी एंड इज वर्थ मोर फॉर द वैल्यू। तो इसमें आप इनोवेशन या यूनिकनेस लाने की कोशिश करते हो अपने प्रोडक्ट के हवाले से, और उसकी वर्थ बढ़ाना शुरू करते हो, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाना शुरू करते हो, और उसकी सर्विसेज जो हैं कंज्यूमर या कस्टमर्स की तरफ उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग योर कंपटीशन विल टेक सम रिसर्च। ठीक है, तो इसके लिए रिसर्च भी कंडक्ट करती हैं मुख्तलिफ कंपनियां। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या आपको क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, व्हाट यू आर सेलिंग, कि आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या आप मार्केट में बेच रहे हैं, टाइप्स ऑफ द कंपनी यू कम्पीट विद, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस किस्म की हैं कंपनियां हैं जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हो, क्या आप उनके साथ डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हो, या अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स हैं, या इनडायरेक्ट कंपटीशन है आपका, या आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे कम्पीट कर रहे हैं, या डायरेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, सम टाइम प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होती हैं तो वो एक डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है उसमें, सम टाइम उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है या लिटिल डाइवर्सिफिकेशन होती है तो फिर वो इनडायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है।
तो हाउ कंपनीज ऑपरेट इन योर इंडस्ट्री, तो कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं इंडस्ट्री में, मार्केट में, तो ये सारी चीजें आप देखते हो, दूसरी कंपनियों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, ना सिर्फ के सिर्फ आप अपनी कंपनी को जानते हैं या समझते हैं, ठीक है। तो उनकी फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर में दूसरी कंपनियां क्या करने जा रही हैं, आपको भी उसी तरह की स्ट्रेटजी बनाना होगी अगर आप फ्यूचर में भी कामयाब रहना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में बहुत सारी चीजें, तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के मेथड जो हैं ये भी 3 मेथड हैं, जैसे कि हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पढ़ा तो उसमें भी 3 मेथड थे, इसके भी फर्दर 3 मेथड है। प्राइस योर प्रोडक्ट द सेम एज द कंपटीशन, तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन प्राइसिंग। तो जैसे आपका कंपटीशन है वैसे प्राइस आप चार्ज करें। देन सेट योर प्राइस टू इंक्रीज कस्टमर बेस, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसको कहते हैं कि आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या मार्केट में अपना ज्यादा कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो आप प्राइस उस हिसाब से सेट करेंगे, यानी कम ही सेट करेंगे तो ऐसे होगा। सी लार्जर मार्केट शेयर थ्रू प्राइस, तो मार्केट में शेयर बढ़ाने के पर्पज या मकसद के लिए आप प्राइस सेट करते हो। मार्केट शेयर का मतलब ये है कि अगर टोटल 1000 मोबाइल फरोख्त हो रहा है तो उसमें नोकिया वाले कितने फरोख्त हो रहे हैं, ठीक है, 500 हो रहे हैं मंथ की बेस पे या वीकली बेस पे, तो उसमें फिर अगर 500 नोकिया के हो रहे हैं तो 50% शेयर हुआ नोकिया का, ठीक है। अगर उसमें 800 हो रहे हैं तो 80% शेयर हुआ। तो इस हवाले से जो कंपनी ज्यादा सेल कर रही होगी वो लीडिंग कंपनी हो, वो लीडर हुए, उनका शेयर ज्यादा हुआ, ठीक है, मार्केट में। तो इस हवाले से मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भी कंपनियां प्राइस को एडजस्ट करती हैं, कम करती हैं, ताकि उनका शेयर जो है मार्केट में बढ़ जाए और वो लीडर के तौर पे सामने आए कि यस ये कंपनी सबसे ज्यादा चीजें बेच रही है, इस कंपनी की ज्यादा चीजें बिक रही है। तो कस्टमर बेस प्राइसिंग जो है ये फर्स्ट मेथड है कंपटीशन में। कस्टमर बेस, सॉरी, इनकी फर्दर डिटेल इतनी नहीं है। ये जो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है, कंपटीशन में मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी प्रोडक्ट के साथ दूसरे कंपटीटर्स हो तो फिर आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस आपने मुनासिब रखने होंगे। अदरवाइज अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी है तो जिन कंपनीज की प्रोडक्ट सस्ती है लोग उस तरफ को जाएंगे, कस्टमर उस तरफ को जाएंगे। तो इस हवाले से आपने देखना होगा कि आपने प्राइस क्या रखने, आप इसमें नाजायज मुनाफा नहीं कमा सकते, कंपटीशन का ये फायदा होता है आवाम को, ठीक है। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में कुछ कंपनियां प्राइस कम करके पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है, घुस जाती हैं मार्केट में, बाद में वो ऐसा ऐसा प्राइस उसके बढ़ाती जाती हैं और जहां उनको प्रॉफिट होता है वहां पे वो स्टॉप करते हैं। मार्केट शेयर प्राइसिंग मैंने आपको बताया कि अपना शेयर मार्केट में बढ़ाने के लिए वो कंपनियां चीज के प्राइस कम करती हैं, ज्यादा कस्टमर्स को गैदर करने के लिए जो है वो, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किन की बेस पे आप प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। तो अभी तक हमारी दो अप्रोचेस हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने किया कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग,
फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, और आखिर पे ये है कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग मीन्स के इसमें कस्टमर पे फोकस करना है। कस्टमर क्या चाहता है, खरीदने वाला क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कस्टमर बेस्ड या कंज्यूमर बेस्ड एक ही बात है तकरीबन। तो मोस्ट बिजनेस ओनर्स वांट टू नो एट व्हाट प्राइस डू माय कस्टमर्स थिंक माय प्रोडक्ट ऑफर्स गुड वैल्यू। तो ये कस्टमर को समझा जाता है, कस्टमर से मालूमात ली जाती है कि उस प्रोडक्ट के प्राइस कितने होने चाहिए। नोइंग योर कस्टमर एंश्योर यू टेक ए मार्केट फोकस विद योर बिजनेस। तो जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं उतना ही वो आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाता है, आपकी कंपनी के साथ अटैच हो जाता है और हमेशा आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, तो जितने लॉयल कस्टमर्स कोई कंपनी बना लेती है उतना उसका बिजनेस सक्सेसफुल चलता रहता है, सक्सेसफुली चलता रहता है। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ योर कस्टमर फील्स अबाउट वेरियस प्रोडक्ट प्राइसेस। तो उसमें आप थोड़ी सी प्रोडक्ट के प्राइस की में वेरिएशंस भी लाते रहते हो कि जब प्राइस आप ज्यादा करते हैं तब कस्टमर क्या कहता है, और जब प्राइस कम करते हैं तो तब क्या करता है, व्हाट दे वुड डू इफ द प्राइस चेंज्ड। ठीक है, तो कस्टमर चेंज देयर बाइंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट प्राइस। एज द सेलर यू नीड टू फाइंड आउट हाउ योर टारगेट कस्टमर्स व्यू योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सर्वे के जरिए से पता चल सकता है। You also need to find out customer attitude towards various prices or a change, price change। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुरू में कोई कंपनी प्रोडक्ट लो प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाती है, बाद में उसमें इंक्रीज करती जाती है, या शुरू में ज्यादा प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाती है और ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करती जाती है और देखती है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, खरीदने वाले कितने हैं, कितनी डिमांड है। तो दिस योर टारगेट कस्टमर एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। डज योर कस्टमर अज्यूम प्राइस इंडिकेट्स प्रोडक्ट क्वालिटी। क्या आपका कस्टमर समझता है कि इसके जो प्राइस हैं वो इसकी क्वालिटी के मुताबिक है, सही है, या वो ये समझता है कि इसकी क्वालिटी कम है, प्राइस ज्यादा है। जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें दुकानदार कहता है कि ये इतने रुपए ये मीटर है कपड़ा, हम कहते हैं नहीं यार इसकी क्वालिटी तो वो वाली नहीं है जो आप पैसे बता रहे। तो फिर वो कहता है कि हाँ ये कस्टमर तो जानता है इसके बारे में या कुछ, तो वो उसके प्राइस उसके फिर एक्चुअल प्राइस भी बता देता है कि इसके इतने प्राइस हैं, ये कम कर देता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के मुताबिक प्राइस जो है वो होने चाहिए। विल कस्टमर थिंक दे आर गेटिंग देयर मनी वर्थ फ्रॉम योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक एक्सचेंज है जो कि एक कस्टमर परचेज करता है एक बायर से पैसों के बदले में। ठीक है, तो वो उसके पैसों की कीमत होती है वो चीज। ठीक है, तो क्या कस्टमर समझता है कि उसने जो पैसे दिए उसके बदले में उसको जो चीज मिली वो बराबर है। ठीक है, जो सर्विसेज उससे मिलेंगी उस चीज से और जो पैसे उसने दिए वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, वो चीज इस लायक थी कि उसके पैसे इतने दिए जाते। तो ये कस्टमर का व्यू हो सकता है। डू योर कस्टमर्स केयर मोर अबाउट प्रेस्टीज देन प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो कस्टमर्स को ये भी देखना जाता है कि वो उस कंपनी जो है उसका रिगार्ड, प्रेस्टीज, उसकी एक रिस्पेक्ट भी वो करता है कि नहीं करता, और कंपनी की रिस्पेक्ट करता है या प्राइस को देखता है। ये भी कंपनी ने देखना होता है कि कस्टमर कंपनी की रिस्पेक्ट कर रहा है या
प्राइस की। जैसे कि मैंने कहा कि जापानीज कंपनी की चीजें जो हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा लोग समझते हैं कि अच्छी हैं कंपेयर टू चाइना। हाँ, तो एक इमेज बन जाता है कंपनियों का। फिर लोग कंपनी को देखते हैं, पैसों को नहीं देखते। ठीक है, कंपनी अगर अच्छी है तो वो कहते हैं प्रोडक्ट जबरदस्त होगी, जो भी प्राइस है ये पे कर दो। सही है, तो कंपनियों को ये भी कंपनियां ये भी देखती हैं और उस लिहाज से पैसे चार्ज करती हैं कि हमारा इमेज अच्छा है, हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, हम कुछ प्राइस पैसे भी, कोई पैसे भी लगा सकते हैं इस पे। देन व्हाट आर द टारगेट कस्टमर्स प्रिपेयर टू पे फॉर योर प्रोडक्ट। तो आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है और जो कि सॉरी जो कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना ये भी एक कंपनीज का काम है टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग जो है इसमें 5 टाइप्स हैं, 5 कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं। इसमें यूज प्राइस टू सपोर्ट प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के इमेज के लिहाज से उसके पैसे रखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिहाज से पैसे रखना। एक तो ये है क्या प्रोडक्ट के लिहाज से उसके पैसे रखे, प्रोडक्ट से जितनी सर्विसेज आती हैं उसके लिहाज से उसके पैसे रखे जाएं। फिर इंक्रीज प्रोडक्ट सेल बढ़ाने के लिए पैसे रखे जाएं। ठीक है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स ज्यादा करने के लिए पैसे रखे। प्राइस रेंज टू अट्रैक्ट मैनी कस्टमर ग्रुप्स, मुख्तलिफ कस्टमर ग्रुप्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पैसे रखे जाएं। इंक्रीज वॉल्यूम सेल्स, ये भी तकरीबन वही चीज है कि वॉल्यूम जो है सेल्स का उस प्रोडक्ट का उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, प्राइस ए बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री आर टू एग्जिट या टू सॉरी एक्साइट कस्टमर्स। ठीक है, एक्साइटमेंट से ये एक्साइट, तो एक्साइट कस्टमर्स। तो समटाइम्स ये जो जैसे कि सेल्स वगैरह लगती है तो कस्टमर्स के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करना ताकि उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक जाएं, चली जाएं, इन्वेंट्री उनकी ख़त्म हो जाए, स्टोर खाली हो जाए। ठीक है, तो इस हवाले से भी वो प्राइस जो है कंपनियां फिक्स करती हैं। ठीक हो गया, तो ये 5 कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग है। इसमें एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को, फिर इन्वेंट्री को रिड्यूस करने के लिए प्राइस जो है वो फिक्स किए जाते हैं। ठीक हो गया, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक। हियर आर द टिप्स फॉर सक्सेसफुल प्राइसिंग, कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करने के लिए जो सक्सेसफुल टिप्स हैं वो क्या है। उसमें बी क्रिएटिव है एक, कि बी क्रिएटिव होना चाहिए एक सप्लायर को, प्रोड्यूसर को। थिंक ऑफ अ न्यू वेज टू सेल मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, आर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर ग्रुप्स। सही है, तो ज्यादा ग्रुप्स को अट्रैक्ट करना, कस्टमर ग्रुप्स को, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और बी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव होंगे तो ज्यादा कस्टमर ग्रुप्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपकी पहले एक प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं वो कुछ ग्रुप खरीद रहे हैं, सही है, ज्यादा नहीं खरीद रहे, तो आप अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाते हैं, कोई वेरिएशन लाते हैं,
उसकी सर्विसेज को बढ़ाते हैं, तो आप कुछ और ग्रुप्स को भी उस तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी इंटेंशन इस तरफ कर सकते हैं। लिसन टू योर कस्टमर, अपने कस्टमर को सुनो, ठीक है, वो क्या चाहता है, सर्वे करो, कस्टमर की राय जानो अपने प्रोडक्ट के बारे में। मेक ए पॉइंट ऑफ नोटिंग कस्टमर कमेंट्स इन ए जर्नल और फाइल, रिव्यू देम periodically टू glean न्यू आइडियाज, ठीक है। तो कस्टमर को सुनो, अपने प्रोडक्ट के वो क्या चाहता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये ठीक है या इसमें ये और होना चाहिए, तो उसके उस तरह के ये जो आइडियाज होंगे ये आप में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को फर्दर बढ़ाएंगे और उससे वो उसकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसकी सेल्स इम्प्रूव होंगी, पहले प्रोडक्ट इम्प्रूव होगी फिर उसकी सेल्स इम्प्रूव होगी। देन डू योर होमवर्क आपने करना है, उस पे बैठ के काम करना है कि इसके प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट के और इसकी क्वालिटी क्या है। कीप गुड नोट्स ऑफ हाउ यू अराइव्ड एट ए प्राइस सो यू कैन मेक सिमिलर assumptions in फ्यूचर। तो आपने बैठ के कैलकुलेट करना है, जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है होमवर्क के तौर पे। देन बूस्ट योर रिकॉर्ड्स, गुड रिकॉर्ड कीपिंग will help you to set a price and to track the performance of your pricing। तो आपने कंपनी की, आपने प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है उसको भी देखना है कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे हैं, आगे क्या प्रोग्राम है। तो एक रिकॉर्ड जो है वो भी रखना है, फाइल्स में रखना है, कंप्यूटर में रखना है, रिकॉर्ड एक रखना है, ग्राफ बनाने। तो ये इस तरह से। देन कवर द बेसिक्स, बेसिक चीजों का आपको पता हो, 3 बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस, कंपटीशन और कस्टमर, इन पे आपने फोकस करना है, उनको समझना है। ब्लेंड प्राइसिंग मेथड्स भी होते हैं टू एंश्योर द 3 बेसिक्स आर इन बैलेंस। तो तीनों को भी मद्देनजर रख के आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट बेस्ड प्राइस को भी मद्देनजर रखें, कंपटीशन को भी रखें, कस्टमर को भी फोकस करके रखें। तो ये एक ब्लेंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस हो जाएगा। देन बी फ्लेक्सिबल, कॉन्स्टेंटली रिव्यू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमने पहले पढ़े हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए आपने कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट हाउ ए प्राइस चेंज वुड अफेक्ट द न्यू सिचुएशंस। तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि सूरत हाल के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करें, ठीक है। जैसे कि कोई एबनॉर्मल सिचुएशंस हो जाती हैं, कोविड-19 वायरस की सिचुएशन है, तो इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी सेल कम हो सकती है, तो फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं उनको कम करना है। तो सिचुएशन के मुताबिक जो है प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होंगे, इसलिए कहा गया बी फ्लेक्सिबल। तो उसमें रिजिड बिहेवियर या रिजिड एटीट्यूड जो होगा कंपनी का, उससे उसकी सेल्स कम होंगी, कस्टमर्स उससे दूर हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो इस हवाले से सो इट शुड बी बेटर टू बी फ्लेक्सिबल। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करना होंगे। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं सर। सो ओके, यस सर ये कोई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है सर, इसकी ये लेक्चर्स हमें कहाँ मिलेंगे, कह रहे थे सर। ये इसकी रिकॉर्डिंग मुझे आती है, वो लिंक शेयर होता है,
तो लिंक अगर मैं शेयर कर दूंगा तो फिर आप लोगों ने खुद उधर से डाउनलोड करना है। मैं ये लिंक उसको दे देता हूँ, CR को भेज देता हूँ। CR इसको डाउनलोड करेगा। अभी CR यहाँ पे नहीं है ना, उसको आप बता दें। CR इन वीडियोस को डाउनलोड करेगा, और अगर कोई YouTube चैनल उसने बनाया है तो वहां पे अपलोड कर दे, और वहां से स्टूडेंट जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, या मैं लिंक है ग्रुप में शेयर हो सकती है सर? लिंक ग्रुप में शेयर होने का मसला ये है कि उसको जब हर स्टूडेंट क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता, उसकी एक्सेस नहीं होती, क्योंकि वो मेरी गूगल ड्राइव से खुलता है। गूगल ड्राइव जो मेरी वाली है उससे खुलता है, तो वो फिर हर स्टूडेंट को मुझे एक्सेस देना होगी। वो बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मेरे इनबॉक्स भी फिल हो जाता है उससे। तो कोई एक स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके YouTube पे रख ले, या डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर दे। ठीक है, तो उससे हाँ मुझे भी पता हो कि मैंने इसको एक्सेस देनी है, मुझे ईमेल आईडी मैं उस एक बंदे को एक्सेस दे दूंगा, तो वो डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर देगा। तो इसमें वो वाला, आप में से वो वाला अच्छा रहेगा जो जिसके पास कोई फास्ट इंटरनेट है या यूनिवर्सिटी में आके डाउनलोड करना चाहता है, तो वो बेहतर होगा। तो ठीक है। हाँ, तो ये मुझे आप बता दें कि कौन से वाले स्टूडेंट को मैंने लिंक सेंड करना है, और साथ वो अपना ईमेल एड्रेस भी मुझे भेज दें, एंड आई विल शेयर। हम देख के आपको मैसेज कर लूंगा सर। आप हाँ मुझे ईमेल कर दो। तो इसके साथ आपका मिड पोर्शन खत्म हुआ, और इस मिड का एग्जाम जो है इसका, और दूसरा जो एंटोमोलॉजी कोर्स है इसका एग्जाम जो है आप क्वार्ट 2 वाले हैं, तो इसका एग्जाम का डिसीजन जो हो रहा है अभी, वो आपका फिजिकल एग्जाम हो रहा है छुट्टियों के बाद। ठीक है, वेकेशंस अगर होती हैं तो आपके आपका फिजिकल एग्जाम इधर होगा फेस टू फेस, मिड एग्जाम। उस मिड एग्जाम के बाद आपकी फिजिकल क्लासेस फेस टू फेस फाइनल पोर्शन पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और वो पढ़ाने के बाद फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो क्वार्ट 2 के लिए ये डिसीजन हम ले रहे हैं। फिर क्वार्ट 1 का मिड जो है वो मे बी ओपन बुक हो जाए। इट्स ओके। ओके सर। तो ओके देन, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। अल्लाह हाफिज सर।